The good morning, students. Myself W. Bodele, lecturer in chemistry department, CS Institute of Technology, Devri Dist, Gondia. We have discussed about the segments of environment. So first we have discussed about the atmosphere. So atmosphere means the air envelope surrounding the earth is known as the atmospheres. Those segments of environment, it is also called as the component of the components of the environment. Then the atmosphere, Greek words, atmo means years. The atmosphere is the protective blanket of gases which is surrounding the earth. Atmosphere is the protective blankets or protective cover of the gases like carbon dioxide, oxygens, various gases present in the surrounding of the earth. Then protect us from uniformly or unifriendly environment of outer space. It extends to the height of about 1600 kilometers from the earth surface. Means जो environment है वो environment की जो height है वो heights 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. कितना किलोमीटर? 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. देन द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, it is called as the tropospheres. Troposphere only part of it warm parts of the earth surface or atmospheres. The lowest layer, the troposphere, only part of it warms 12 kilometers thickness. ट्रोपोस्फियर्स ये लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फियर का, ये 12 किलोमीटर्स का है. देन स्ट्रेटोस्फियर्स इज 50 किलोमीटर्स थिक एंड कंटेन्स लेयर ऑफ सल्फेट विच इज इन द फॉर्मेशन ऑफ रेन. ये स्ट्रेटोस्फियर है. ये स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर्स के दूरी पे है और इसमें सल्फेट कंटेंट्स है. सल्फेट के कारण विच इज इन द फॉर्मेशन ऑफ रेन. देन एटमॉस्फियर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन एंड 0.9% एरोगन. देन ट्रेसेस गैसेस, जो कम परसेंट्स में जो गैसेस प्रेजेंट रहते हैं एनवायरमेंट्स में, वो है नियॉन, हीलियम, मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, सस्पेंडेड लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. देन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन्स essential for life. Then source of carbon dioxide essential for plants in photosynthesis. Then next topic है हाइड्रोस्फीयर. तो हाइड्रोस्फीयर्स, हाइड्रो means water. The Greek words hydro means waters. The hydrosphere contains, डायग्राम में आपको दिखता होगा. Then hydrosphere comprises of all the water bodies on or below the surface of the earth. मतलब hydrosphere means water bodies. तो water bodies on or below the surface of the earth. Water is universal indicators or water is the universal solvents. मतलब कोई भी सब्सटेंस वाटर में
यदि सस्पेंड करते हो तो वो डिजॉल्व होता है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक सुगर्स डिजॉल्व इन द वाटर्स, सुगर मतलब सोल्यूट हो गया और वाटर मतलब ये हो गया सॉल्वेंट्स। देन द हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द अर्थ वाटर रिसोर्सेस, ओशन, seas, lakes, rivers, ponds, streams, groundwater in the flow surface water. Earth surface is covered by 71% water. कितना परसेंट? 71% वाटर है अर्थ सरफेस। 97% ऑफ द वर्ल्ड वाटर्स इज कंप्राइज इन द ओशंस। तो 97% ऑफ द वर्ल्ड वाटर इज कंप्राइज इन द ओशंस। इट प्रोवाइड्स द वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हाइड्रोस्फीयर क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स द वाटर फॉर ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, agricultural, industrial, water flowing down from mountain ranges used to generate electricity in hydroelectric projects. Hydrospheres it generate electricity in hydroelectric project, electricity generate करता है। Then hydroelectric project in India is 7। in India में जो प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर में चलने वाले जो प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया में 7 है। देन कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन द लार्जेस्ट पावर प्लांट इन इंडिया। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन द लार्जेस्ट पावर प्लांट इन इंडिया। इंडिया में सबसे कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है। देन लिथोस्फीयर, द लिथोस्फीयर्स थर्ड कंपोनेंट्स है एटमॉस्फेयर का लिथोस्फीयर्स। तो लिथोस्फीयर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्पीयर combines with the Greek word lithos means rock. The solid outer component of the earth is called as the lithospheres. Lithosphere includes soil present रहते lithosphere से, and also includes earth crust, rocks and mountains. Lithosphere provides as the soil for agriculture, stone, gravel, sand for construction, nutrients for plants growth. Lithosphere contains organic matter and source of producing food for animals and human beings. जो साइल में जो ऑर्गेनिक कंटेंट्स प्रेजेंट रहते, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहते, वो क्या करते, क्या प्रोड्यूस करते? फूड फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। देन लिथोस्फीयर मेनली कंटेन्स 3 लेयर्स, मेनली कंटेन्स 3 लेयर्स। तो फर्स्ट लेयर है इनर एंड आउटर कोर। सेंट्रल फ्लूइड आर वेपोराइज द स्फीयर ऑफ डायमीटर ऑफ अबाउट 25500 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर्स, मतलब 2500 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर। डायमीटर कितना है इनर एंड आउटर कोर का? 2500 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर्स। देन मेंटल, सेकंड पार्ट है मेंटल्स। इट इज अबाउट 29000 to 3000 किलोमीटर्स अबाउट द कोर इन द मोल्टन स्टेट्स। जो मेंटल पार्ट है लिथोस्फीयर में, जो मेंटल पार्ट है वो 2900 से 3000 किलोमीटर के बीच में है। देन लास्ट है क्रस्ट, आउटर मोस्ट सॉलिड जोन अबाउट 8 to 40 किलोमीटर्स अबाउट द मेंटल्स। कितना है? क्रस्ट 8 से 40 किलोमीटर अबाउट द मेंटल्स। देन लास्ट है बायोस्फीयर। लास्ट है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर्स
region of the earth surface where life exists is known as biospheres. Biosphere is the global sum of all ecosystems. बायोस्फीयर में टोटल सम ऑफ, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ओशन इकोसिस्टम है, ये पूरे जो इकोसिस्टम आते हैं